अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ और उम्मीद करती हूँ आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। एक बार फिर से अल अंसार इंस्टीट्यूट की जानिब से मुनाकिद की गई वर्कशॉप डे 6 में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप तमाम सिस्टर्स ने लिंक शेयर कर दिया होगा अपनी ग्रुप्स में, और स्टेटस पर नहीं करा है तो आप तमाम लोग जल्दी जल्दी इस लिंक को शेयर करें और अपने तमाम प्यारों को इस खैर में इनवाइट करें। दर्स का आगाज करते हैं कुरान की तिलावत से। आप लोगों के सामने सूरत तलाक आयत नंबर 11 की मैं तिलावत करूंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलन यत्लू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनातिन लियुखरिजल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वमन यु'मिन बिल्लाहि वयअमल صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत की ट्रांसलेशन के लिए मैं दावत देती हूँ सिस्टर इनब तालिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यानी वो रसूल जो तुम्हारे सामने रोशनी देने वाली अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाते हैं, ताकि जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं उनको अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आएं। और जो शख्स अल्लाह पर ईमान ले आए और नेक अमल करे, अल्लाह उसको ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जहाँ जन्नती लोग हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह ने ऐसे शख्स के लिए बेहतरीन रिज्क तय कर दिया है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अब हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है तलाक और खुला में बढ़ती शरअ असबाब इलाज। मैं दावत देती हूँ सिस्टर मैमुना अतिया साहिबा को, जो कि आलिमा फाजिला दाया हैं, वो आए और अपने उन्वान पर खिताब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد فإن خير الحديث الكتاب الله وخير هدي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وكل شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا معزز سامعات کرام، اللہ کی ہر قسم کی حمد و ثنا اسی رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام کائنات کا پالن ہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرنے، سننے سنانے اور آگے بڑھ کر اس کا جذبہ خیر کرنے کا جذبہ عنایت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ رب العالمین نے پھر سے ہمیں اس انتظام کرنے والوں کو اللہ خیر بخشے جنہوں نے اس بہترین ذریعے سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام انجام دے رہے ہیں۔ میری معزز سامعین کرام، میں آپ کے سامنے اپنے موضوع سے متعلق بیان کرنے سے قبل اس معاشرے میں پائے جانے والے اس حصے کا تعلق سے بیان کرنا مناسب سمجھتی ہوں کہ 14ویں صدی ہجری کا زمانہ ہے۔ آج کل اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ شوہر بیوی کے آپسی اختلافات، جھگڑوں سے عدالتیں کشمکش اور بار بار پر طلاق اور خلا اور حضرات کی عورت پر مار پیٹ وغیرہ وغیرہ کے پریشان کن واقعات رونما ہوتے رہ رہے ہیں۔ کہیں شوہر نیک خصلت کے ہیں تو کہیں بیوی بد خصلت ہے، اور کہیں شوہر نیک نہیں تو بیوی نیک خصلت کی خوگر ہے۔ میری عزیز سامعین کرام، آج کی دنیا میں ایسے شوہر بیوی بھی ہے جو الفت محبت میں ہم خیال ہے، ہم نظریہ ان کا ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے، لیکن افسوس ان کے درمیان دین اسلام کی تو کوئی تعلیمات صحیح طریقے سے گامزن نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کے طور طریقے ان کے بچوں میں سراحت کر جا رہے ہیں۔ وہ آباء کی غلط مروجہ شرک و بدعات میں مبتلا ہو کر دین و دنیا کو بھی تباہ کرتے ہوئے گناہ کے مرتکب ہوتے جا رہے ہیں۔ ان حالات کے پیش نظر ہونے والے واقعات کے مماثل جو مجھے موضوع دیا گیا ہے یہ ہے کہ طلاق اور خلا کی بڑھتی ہوئی کثرت، اس کے اسباب و علاج۔ میری عزیز سامعین کرام، حقوق زوجین کا مقام اسلام میں کیا رکھا گیا ہے؟ اس سے ناواقفیت کی وجہ سے خلا اور طلاق جیسے چیزیں اس معاشرے میں زیادہ تر کثرت کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں۔ اس کا سبب یہی ہو سکتا ہے میری عزیز سامعین کرام، سفر کی فضیلت تو بیان کرنے سے سفر طے نہیں ہوتا، بلکہ سفر کس طرح طے کرنا چاہیے یہ جاننا نہایت ہی ہر ایک کو ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے شوہر بیوی کو اپنا اپنا مقام حق حاصل کرنا، اس کو جاننے کے لیے آتی اللہ آتی رسول کو جاننا بہت ہی لازمی اور ضروری ہے، تاکہ اس پر عمل کر کے دین و دنیا کی بھلائی حاصل کر لے۔ میری عزیز سامعین کرام، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کی ہوں، سورۃ النساء آیت نمبر 1 میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اس طرح کہ ایک جان آدم کو پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا یعنی بیوی کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے بہت سے مرد عورتیں پھیلائی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے سوال کیا کرتے ہو، اور قطع رحمی سے بچتے رہو، بے شک اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ معزز محترم سامعین کرام، اللہ کا احسان عظیم ہے کہ ہم جیسے ناچیز جو قرآن کریم کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں، دوسروں کو سناتے ہیں، تو اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھ کو سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور
तमाम सामियात को भी अल्लाह ताला जो भी आमाल सालिहा कर रही हैं उसमें और दुगना अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इसके साथ साथ एक आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सबसे पहले अल्लाह की हम्द सना के बाद जिस कायनात का रब है उसके लिए तमाम तर तारीफ है, तमाम रुकू सुजूद क़ियाम दुआएं मन्नतें हजतें नज़रो नियाज तमाम उस दरबार में उसके खालिक के कायनात के सामने ही लायक व ज़ेबा है। इसी तरह हमारे पर एहसान अजीम है कि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जिनके तुफैल में हमें नुक्से कीमिया कुरान मजीद जैसा नुक्सा मिला जिसके तुफैल में हमें अपनी ज़िंदगियाँ संवारने और उसके ज़रिए अपनी ज़िंदगियाँ बनाने का तरीक़ा हासिल हुआ। तो मेरे अज़ीज़ सामित कराम एक मरतबा अपनी ज़बान से अंदर आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामित कराम, जो आयत करीमा मैं आपके सामने तिलावत की हूँ उसमें रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ रब्बुल आलमीन ने उनके जोड़े के लिए उनके साथी और हमसफ़र को जिसको पैदा किया हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को माँ हव्वा को पैदा किया। मेरी अजीज़ सामित इकराम, अल्लाह ताला ने मर्द औरत की जो ज़िंदगी रखी है वो एक बेहतरीन ज़िंदगी है जिसे कुरान हदीस की रोशनी में समझा जाए और उसके मुताबिक बिना अमल किया जाए तो वो निकाह बेहतरीन निकाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे इरशाद फरमाते हैं सूरतुल हुजुरात में, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअराफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐ लोगों सुनो, हमने तुमको एक मर्द और एक ही औरत से पैदा किया और हमने तुम सब लोगों को मुख्तलिफ कौमों और कबाइल इसलिए बनाए हैं कि तुम एक दूसरे को पहचान लिया करो। अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ बड़ा परहेज़गार यही है। मुअज़्ज़ज़ सामित इकराम, इसी तरह रब्बुल आलमीन आगे तक़वा इख्तियार करने का हुक्म देने के लिए जब भी हम किसी का निकाह देखते हैं या सुनते हैं तो यही सुनते हैं कि निकाह के अवाक़ात में 3 तरह की आयतें तक़वे के मुताबिक एक पढ़ी जाती है। खतीब जो खुतबा देते हैं उस वक़्त 3 भी तक़वे के मुश्तमिल रहती है आयतें। इसी तरह रब्बुल आलमीन सूरतुल बक़रा में इरशाद फरमाते हैं, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। औरतें मर्दों के लिए लिबास है और मर्द औरतों के लिए लिबास है। और रब्बुल आलमीन आगे इरशाद फरमाते हैं, वलहुन्ना मिस्लुल लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ। जैसे हुकूक औरतों पर मर्दों के हैं वैसे ही औरतों के हुकूक मर्दों पे। मेरी अजीज सामित इकराम, बेहतरीन एक लफ्ज़ रब्बुल आलमीन ने औरत को बेहतरीन तरीके से बताया कि एक तुम मर्द के लिए लिबास हो और मर्द तुम्हारे लिए लिबास है। ये बेहतरीन खूबसूरत लफ्ज़ रब्बुल आलमीन ने बंदों के सामने बताया कि तुम एक बेहतरीन लिबास में एक दूसरे के लिए बनाए गए हो। मेरी अजीज सामित इकराम, खूबियाँ लिबास की बहुत सारी होती हैं और उन खूबियों में एक खूबी ये भी होती है, 3 तरह की खूबियाँ बहुत ही ज़्यादा अयां होती है। लिबास एक इंसान को इस तरह से हर एक शर्त से पहली चीज़ ये है कि लिबास इंसान को गर्मी, सर्दी, जाड़े, बारिश से महफूज़ कर देता है। यानी हर मुश्किल और परेशानी से और बुरे हालात से उसे हिफ़ाज़त करता है उसके जिस्म की। इसी तरह एक शौहर और एक बीवी, जब शौहर के ऊपर कुछ आन पड़ी या कुछ उसके साथ कोई गलत काम हो रहा है या उसके साथ कोई गम, दुःख लगा हुआ है, कोई परेशानी आई है, तो एक बीवी का काम है कि शौहर की अनथक कोशिश करके उसकी हौसला अफ़ज़ाई करे, उसके दुःख को कम करे। इसी तरह जब शौहर बीवी के ऊपर कोई दुःख और कोई परेशानी, कोई चीज़ उसके ऊपर आई हो तो शौहर का काम ये है कि वो निकाह के मुमासिल जो निकाह में कबूल है कि जो लफ्ज़ इक़रार किया है उस लिहाज से एक दूसरे के लिए वो लिबास है, तो वो उस बीवी के लिए हमनवा हमसफ़र बने, उसके दुःख सुख में साथ दे। मेरी अज़ीज़ सामित इकराम, इसीलिए उसे लिबास कहा गया। दूसरी ख़ासियत लिबास की ये होती है मेरी अज़ीज़ सामित इकराम, लिबास इंसान के ऐब को छुपाता है। जब एक इंसान लिबास पहनता है तो जिस्म के अंदर के तमाम दाग धब्बे और तमाम उयूब, उस उयूब को वो छुपा कर बहुत ही ज़्यादा उसे खूबसूरत बना देता है। इसी तरह एक मर्द एक औरत एक दूसरे के उयूब और एक दूसरे की खामियों को छुपाने का ज़रिया बनने का अलाकार बने। ना कि ये कि बीवी अपने मायके में जाकर शौहर की ग़ीबतें, शौहर के बारे में गलत बयानी करे, जिससे तीसरे को मौका मिले और तीसरा उसके अंदर दखल अंदाज़ी करते हुए उसके शौहर की मोहब्बत को उसके दिल में घटाता चला जाए। यह मौका एक औरत को नहीं देना चाहिए मेरे अज़ीज़ साहब। आज माशरे में जितने भी सवालात मेरे सामने जब भी फ़ोन पर आते हैं या आमना-सामने होते हैं, तो यही होते हैं कि एक बीवी की शिकायतों की वजह से एक शौहर की तरफ से बहुत सारी नाराज़गी उसके दिल में रहने की वजह से उसके मायके वाले उसको सिखा-सिखा कर उसके घर को बर्बाद करते हैं। तो एक शौहर को उसके दोस्त अहबाब, उसके घर वाले
वलगला कर उसको एक बात की जगह 10 लगा कर उसकी बीवी की मोहब्बत को कम करते ही नहीं। नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक, ऐसे शर पसंद लोग नौज़बिल्लाह इन दोनों मियाँ बीवी की उल्फत मोहब्बत और प्यारी जोड़ी को जुदा करने के लिए हर काम कर बैठते हैं जिसके अंदर जादू भी है। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना, अल्लाह ताला हम तमाम को इस चीज़ से महफूज रखे। तो मेरी अजीज सामत कराम, माशरे में बहुत सारी ऐसी है कि ना सिर्फ गीबत, चुगली, ऐब जोई, तानाजनी नहीं रही, बल्कि मियाँ बीवी को जुदा करने के आला का जो काम अंजाम दिया जा रहा है वो जादू है, और उनके अंदर पाई जाने वाली मोहब्बत को मिटाने के कई तरीके वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक शऊर ज़दा औरत का ये काम है कि इन चीज़ों को देखते हुए रब्बुल आलमीन की तरफ ज़्यादा तक़र्रुब हासिल करें और अपनी ज़िंदगी को संवारने के वो तमाम हथियारों को अपना लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला तमाम औक़ात आने से पहले, वो तमाम हालात बद आने से पहले, हालात बुरे आने से पहले इंशाअल्लाह उसकी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से आसान हो जाएगी, आसान बन जाएंगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। खुला तलाक, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली तुम कभी तलाक ना देना और तलाक की बात ना करना, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तलाक को बेइंतहा नापसंद किया है। क्योंकि एक बंधन बेहतरीन बंधन होता है, उस बंधन को तोड़ने के लिए जब इंसान बैठता है तो उसके अंदर जुदाई पड़ जाती है। तलाक की 3 शक्लें हैं और खुले की एक ही शक्ल है कि बीवी अगर अलहदा होना चाहे तो महर को माफ करते हुए वो अलहदा हो जाती है। एक ही सेकंड में अलग हो सकती है, घर जा सकती है। फिर अगर वो जुड़ना चाहे अपने शौहर से तो नए तरीके से निकाह करके महर लेकर फिर वो जिंदगी में आ सकती है। लेकिन मेरे अजीज सामत इकराम, खुला तलाक को रब्बुल आलमीन ने नापसंद किया, और जब इंसान जब खुला होता है या तलाक होती है तो रब्बुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए फरमाता है कि उसका अर्श हिल जाता है, अल्लाह ताला नाराज हो जाता है उस बंदे बंदी से। जबकि आप माशरे में देखेंगे कि कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो नापायदार हो। माँ बाप का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता, बेटा बेटी का रिश्ता, और तमाम जितने रहम के रिश्ते हैं, ननियाली ददियाली मायके ससुराल के, तमाम रिश्ते पायदार मजबूत होते हैं, और उससे कता रहमी भी करने का हुक्म नहीं दिया गया। जिसने खता कर रहमी की सुलह रहमी में, तो उसने जहन्नुम को पा लिया, जहन्नुम को हासिल कर लिया। और एक वो रिश्ता है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजनबियों को इकट्ठा किया, दो दिल को मिलाए और दो दिल को जोड़ा, और वो निकाह के बाद के बंधन में इस तरह से मिल जाते हैं कि गोया शुरू से जानते हैं। और एक बच्ची जो 20 साल जिंदगी को और 25 साल जिंदगी को, 18 15 साल जिंदगी को और 30 साल जिंदगी को भूल कर मायके की और भूल कर अपनी जिंदगी को अपने ससुराल में इस तरह से गुजार देती है कि गोया वो पहले थी ही नहीं मायके में। गोया एक शौहर की मोहब्बत उसे इतनी ज्यादा उसको उस घर में रहने के लिए तरजीह देती है कि वो शौहर की मोहब्बत के खातिर वो तमाम रिश्तों को, ससुराली नंदन सास और जिठानी देरानी के तमाम, देवरों जेठानों के तमाम तमाम रिश्तों को समेट लेती है, और बेहतरीन कैरेक्टर, अपना बेहतरीन किरदार पेश करते हुए जिंदगी गुजार देती है, बशर्ते के शौहर वहां पर अच्छा हो। तो मेरी अजीज सामत कराम, अगर शौहर नापसंद भी है तो उसके भी कई हदीस आए हैं कि वो किस तरह से उस चीज को सुलझाएं और कहाँ पर खुला तलाक ली जा सकती है। तो मेरी अजीज सामत कराम, लिबास के बारे में आपको मालूम हुआ कि लिबास 3 तरह से, एक तो ये कि तमाम हालात से, बुरे हालात से इसको महफूज करता है। दूसरा ये है कि तमाम उयूब को छुपाता है, इसी तरह मियाँ बीवी अपने ऐबों को छुपाएं। तीसरी चीज ये है कि लिबास आसाइश और जेबाइश देता है, खूबसूरती बख्शता है। लिबास इंसान के ऐब को और उसकी खूबियों को, खामियों को जाहिर नहीं करता बल्कि खूबियों को उभारता है। और मेरी अजीज सामत कराम, लिबास की हिफाजत भी की जा सकती है, की जाती है। मेरी अजीज सामत कराम, इसी तरह शौहर बीवी के लिए मुहाफिज बने और बीवी शौहर के लिए मुहाफिज बने, और शौहर बीवी के लिए खूबसूरत बन जाए और बीवी शौहर के लिए खूबसूरत बन जाए, तो माशरे में खुला तलाक की कसरत घटती जाएंगी। वरना अगर हमारे अंदर की यही ना, यानी अल्लाह रसूल की मारिफत से नाशनाई रहेंगी, तो यही हमारे माशरे में कसरत तलाक और खुले की बढ़ती चली जाएंगी। मेरी अजीज सामत कराम, बहुत से खवातीन अपने औलाद के हक में, औलाद के सबब से अपने शौहर से बहस मुबाहिसा कर जाती है। बहुत से मर्द अपने वालिदैन के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए अपनी बीवी को जलील वखार कर देते हैं, और बहुत सी बीवियां अपने शौहर के सामने नाजायज ख्वाहिशात रखते हुए अपने शौहर के साथ नाराजगी मोल लेती है, और छोटी छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर उनसे अलहदगी अख्तियार कर लेती है। तो इसी तरह से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इस तरह से मामला नहीं समझा जाता। बेहतरीन दानिशमंद वालिदैन वो होते हैं मेरे अजीज सामत इकराम, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीरत को जाने और उस तरह से अपनी सीरत को जानते हुए अपने बच्चों को विदा करे। बच्ची की शादी करे या बच्चे की शादी करे, बाप है तो शादी से पहले अपने बच्चे की इस्लाह करे, उसको तमाम चीजों से ऊंच अज़वाजी जिंदगी के बारे में मुतारिफ करे, उसे अपनी जिंदगी के बारे में, अपने दोस्त अहबाब की जिंदगी से मुतारिफ करने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सहाबा की जिंदगी उसे मुतारिफ करे, और उसे मारिफत दिलाए, उसे समझाएं कि क्या जिंदगी होती है एक मर्द की, एक शौहर बनने के बाद किस नाते में, किस खानदान से वो जुड़ता है, किस औरत के साथ उसको निस्बत पड़ने वाली है, उसको ताल्लुकात हासिल करना है।
इसी तरह मेरे अजीज साहब इकराम, एक माँ है तो माँ का काम है कि अपनी बेटी को बेहतरीन तरीके से इस्लामी तालीमात से आरास्ता पैरास्ता करते हुए उसको घर से रुखसत करे। मेरी अजीज साहब इकराम, एक वाक़या आपको सुनाती चलूं कि जितने भी सहाबियात की जितने भी सहाबियात थी और ताबेन ताबाइन थे, उनका अंदाज़े बयां ये होता था, जब निकाह करते थे अपने लड़का लड़की का तो उससे पहले उन्हें इस्लामी तालीमात से, आते अल्लाह आते रसूल से मारिफत दिलाते थे, उन्हें अच्छी तरह से समझा देते थे कि जिंदगी, अज़वाजी जिंदगी क्या होती है। उसके बाद उन्हें रुखसत करते थे और उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हुआ करती थी। मेरी अजीज साहब कराम, आइए अस्मा बिनते खारजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अस्मा बिनते खारजा फजारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपनी बेटी को ससुराल भेजते वक्त जो वसीयत की थी, उसके बारे में इमाम गजाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं, लिखते हैं कि जब उन्हें अपनी बेटी को नसीहत कर रहे हैं रुखसत करते हुए ससुराल की तरफ, तो बोलते हैं अपनी बेटी से अस्मा कि बेटी, तुम एक जाने पूछे आशियाने से निकली हो, ऐसे जाने पूछे आशियाने से घर से निकली हो जिसे तुम जानती तो वो मयका है, ऐसे मकान को अपना रही हो जो तुम्हारा ससुराल होगा, जिसे तुम पहचानती नहीं हो, तुम जानती नहीं हो, ऐसे रफीक हयात से तुम्हारा सामना है जिससे तुम नाशना हो, मानूस नहीं हो, लिहाजा तुम्हें चाहिए कि जमीन की तरह उसके पांव तले बिछ जाओ, वो तुम्हारे हक में आसमान बनने की कोशिश उस्ताज़ा करेगा। मौजिद उस्ताज़ा सामने जी, आपकी आवाज़ स्लो आ रही है, थोड़ा मोबाइल करीब रख कर बोलिए। अस्मा बिनते खारजा, अब आ रही है आवाज? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्मा बिनते खारजा फजारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी बेटी को ससुराल भेजते वक्त जो वसीयत की थी, वो अल्फाज यूं हैं जो हमारे लिए जिंदगी को संवारने का जरिया है। बेटी, तुम एक जाने पूछे आशियाने से निकली हो और ऐसे मकान को जा रही हो जिससे तुम नाशना हो, जिसे नहीं पहचानती, वहां के रहने वालों को नहीं पहचानती, अपने शौहर को नहीं जानती, ऐसे रफीक हयात से तुम्हारा सामना है जिससे तुम नाशना हो, तुम्हारे हक में आसमान बनने, तुम उसके हक में फर्श बन जाओ, तुम उसके लिए जमीन की तरह बिछ जाओ तो वो तुम्हारे लिए आसमान बनने की कोशिश करेगा। सुभान अल्लाह। तुम खुद को फर्श की तरह साबित कर दो, वो तुम्हारे लिए सुतून साबित होगा। तुम लौंडी बनकर रहो, वो गुलाम बेदाम बनकर रहेगा। किसी मुतालिबा पर इसरार ना करो, किसी भी डिमांड की उसके सामने इसरार ना करो, वरना बेजार हो जाएगा। इससे दूर दूर ना रहो, वरना तुम्हें भुला देगा। अगर वो करीब आए तो तुम भी करीब आने की कोशिश करो, अगर वो दूर रहे तब भी तुम उसके नजदीक जाने की कोशिश करो। बहरहाल में उसकी इज्जत और शोहरत और उसकी शख्सियत का ख्याल रखो, वो तुमसे सिवाय महक के और कुछ नहीं सूंघने पाए, सिवाय अच्छी बात के कुछ ना सुनने पाए। मौजिस मोहतरम सामियात इकराम, इस वसीयत के अंदर बेहतरीन चीजें छुपी ढकी हुई है जो हमारी जिंदगी को संवार सकती है। जो खवातीन आज बेजा डिमांड करती है और शौहर से कहती है कि आप हमारे लिए तमाम चीजें सहूलतों के मैसर कर दीजिए, चाहे वो आपके पास कमाई हो उतनी बराबर ना हो, हलाल हराम की तमीज रखना जरूरी है। मेरी अजीज सामित इकराम, पहले की खवातीन जब अपने शौहरों को रुखसत करती थी तो वहां पर सबसे पहले ये नसीहत करती थी कि मेरे सरताज, आज तो जा रहे हैं लेकिन याद रखिए, इस माश के लिए जब निकल रहे हैं तो याद रखिए हम जहन्नुम की आग से अपने आप को हमको बचाए रखना, क्योंकि इस भूख को तो हम बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन जहन्नुम की आग हम बर्दाश्त नहीं कर पा सकेंगे। तो मेरी अजीज सामित इकराम, वक्त तकाजा करता है इस बात का कि एक मुस्लिम खातून और एक मुस्लिम मर्द, यानी मोमिना मर्द औरत अपने आप को इस्लामी तालीमात से आरास्ता करते हुए जब निकाह करेंगे तो इंशाल्लाह तबारक तआला तमाम मसाइल जो इसकी जिंदगी में आने वाले हैं, ऊंच नीच, वो तमाम की तमाम उसके साथ आसान बन जाएंगी, उसका हल निकल जाएगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेहतरीन है बेहतरीन वो औरत जो जिसका शौहर उसके इंतकाल से खबर राजी रहे, जब उसका इंतकाल हो जाए तो रब्बुल आलमीन उससे कहेगा तुझे क्या चाहिए, बस उसे बगैर किसी हिसाब किताब के उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। ये खातून के लिए, मर्द हजरात के लिए भी बहुत सारी नसीहतें हैं, क्योंकि मेरे सामने सिर्फ खातून की शिकायतें नहीं, मर्द हजरात की भी शिकायतें हैं, और मर्द हजरात की भी नहीं, औरतों की भी शिकायतें हैं, दो तरफा है। और माशरे में ऐसे बहुत सारे उलझे हुए मसाइल है जिसे देखकर बहुत ही हैरत होती है कि अल्लाह ताला हमारे उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह फरमाए। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला कुन्तु आमिरन अहदन अन यसजुदा लिअहदिन लिअमरतु अलमरअता अन तस्जुदा लिज़ौजिहा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर मैं किसी के लिए, किसी मखलूक के लिए सजदे का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने खाविन को सजदा करे। अल्लाह अकबर। मेरी अजीज सामित कराम, एक रिवायत में आता है कि लड़की शादी नहीं कर रही थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसकी लड़की के वालिदैन नबी के वसल्लम के पास आए और कहा कि हमारी दुख्तर शादी करने से अपने आप को मना कर रही है, नहीं करने चाह रही है।
अल्लाह के रसूल सल्लम उसको पूछिए क्या वजह से वो शादी नहीं करना चाह रही है। अल्लाह के रसूल सल्लम ने उससे पूछा, दरियाफ्त किया, वजह मालूम की, तो उस लड़की ने कहा कि अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताइए कि शौहर का बीवी पर हक क्या है जिससे मैं वाकिफ नहीं हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाविन का हक बीवी पर यह है कि अगर खाविन का जिस्म जख्मों से पुर हो या उसकी नाक से खून पीप बह रहा हो या गंदगी बह रही हो और वो अपनी जबान से उसे साफ कर दे, चाट लें, तो भी उसका वो हक अदा नहीं कर सकती। अल्लाह अकबर। तो मेरी अजीज सामित इकराम, उस लड़की ने कहा, मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे भी अल्फाज भी कहे, अगर मैं किसी को सजदे का हुक्म देता तो मैं अल्लाह के तरफ से अल्लाह के बाद किसी को सजदे का हुक्म होता तो मैं शौहर को सजदा करने का एक औरत को हुक्म देता। ये अल्फाज सुनकर उस लड़की ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस तमाम तर जो हुकूक है शौहर के बीवी के साथ, उस खाविन के हुकूक को मैं उस तरह से अदा नहीं कर सकती जिसके वहां से इस्लाम में बताया गया है। यानी अपनी सलाहियत ना होने की वजह से वो उजुर पेश की, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वालिदैन को मना किया और कहा कि तुम जबर ना करो, जबरदस्ती ना करो, उसके हाल पे से छोड़ दो जब तक कि वो उसकी इताअत करने पर अपने आप को तैयार ना कर ले, मायल ना कर ले। सुभान अल्लाह। ऐसी खवातीन होती थी, कितना खौफ और खदशा था कि कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बात से कहीं वो चीज में नाकाम हो गई तो जहन्नुम ना मिल जाए। तो मेरी अजीज सामत कराम, वक्त तकाजा करता है कि हम इस तरह से अज़म करें, जैसा कि अल्लामा इकबाल ने कहा है, अज़म अज़्म मोहकम अमले पहम, अज़्म मोहकम अमले पहम, मोहब्बत फाते आलम, ये है जहाद जिंदगानी में मर्दों की शमशीरी, ये है जहाद जिंदगानी में औरतों की जिंदगी, ये है औरतों की शमशीरी। मैं तो ये कहूंगी मेरे अजीज सामतकाम, आज अशद जरूरत है खवातीन को समझदारी लाने की, क्योंकि खवातीन को मर्द को औरत को कव्वाम बनाया गया है और औरत को बच्चों पे उसके काबिल की घरदारी पे कव्वाम बनाया गया है, काबिल पे नहीं। लेकिन आज के खातून का ये तकाजा है कि मेरा शौहर मुझे बराबरी का मुकाम नहीं देता। पहले की बात है, 2 दिन पहले की बात है, अल्लाह ताला ने खातून को बेहिसाब करोड़पति बनाया, दौलत दिया, लखपति है वो लोग मियाँ बीवी, लेकिन सुकून नहीं है उनके दिलों में। इतना अफसोस हुआ देखकर कि शौहर की शिकायत है कि 6 महीने से उसके करीब नहीं आई बीवी। जब मैंने पूछा कि क्यों ऐसा किया आपने, तो कहा कि इस वजह से नहीं कर रही हूँ कि उन्होंने लैपटॉप पे अपने ऑनलाइन 24 यानी 12-13 घंटे जॉब करते हैं, वो मेरे करीब नहीं आते, मैं उनके पास नहीं जाती। यानी अलग एक दूसरे की अना में वो एक दूसरे एक घर एक छत के नीचे होते हुए कोई उनके साथ नहीं है सिवाय सास ससुर के। तो भी इतनी अनानियत, इतनी हठधर्मी कि एक बीवी शौहर के सामने झुकना नहीं पसंद करती है। शौहर अपने अपने हालात को बता रहा भी हो तो उसको कबूल करना तस्लीम नहीं करती। तो गोया ये दीन इस्लाम की नावाकिफियत और नाशनाई की वजह से ये हालात खूब फजूल हो रहे हैं। मेरे अजीज साहब के पास ये भी सवाल मेरे सामने आया, मेरे अजीज साहब, एक मर्द से जबर देखिए, जिस औरत रमजान में रोजे रखती हो वो उसके साथ उस मर्द को भी रोजे रखने का अल्लाह ने इस्लाम में हुक्म दिया है, लेकिन वो इस्लाम में अरकान इस्लाम के रुकुन को छोड़ने की तलखीन करता है औरत को और उससे जिमा की ख्वाहिश करता है। तो ऐसे मर्द को क्या कहना जो हीले हवाले करता है तलाक देने के लिए कि तू मेरे करीब ना आए, हालांकि फर्ज रोजा है, नफिल रोजा नहीं है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नफिली रोजे शौहर से पूछ के रखा करो वरना मत रखो। नफिली रोजा तोड़ने का हुक्म शौहर दे, उसकी ख्वाहिश को पूरा करना चाहे तो वो औरत उसके लिए तैयार हो जाए। लेकिन मेरी इज्जत संतराम, यहाँ पर मर्द गलत था कि फर्ज रोजे को तोड़ने का हुक्म दे रहा हो और वहां पर जबर कर रहा हो या तलाक की धमकी दे रहा हो, तो ये भी गलत चीज है। तो माशरे में बहुत सारी ऐसी चीजें हुकूक हो रही है मर्द की तरफ से, औरत की तरफ से, जिसकी वजह इस्लामी तालीमात से बेबहरा होना, असली तालीम को हासिल करना, फिर या फोनों के अंदर इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर ऐसे फजूल चीजें देखने में अपने औकात को गुजार देना, जिसकी वजह से शौहर की नजर में बीवी नहीं भापरी, नहीं नहीं सच पा रही है, नहीं उसकी खूबसूरती नजर आ रही है। इसी तरह बीवी के सामने शौहर की खूबसूरती, शौहर के एहसानात उसकी नजर में नहीं पा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ऐसी चीजों से हमारे माशरे को पाक करे और अच्छी जिंदगी गुजारने का जज्बा इनायत फरमाए। इस माँ बाप को भी, आप पढ़ेंगी सीरत तो बेहतरीन खूबसूरत पहले हमारी जिंदगी को संवारने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और हजरत तला अनहा और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ जब निकाह किया तो उस वक्त रुखसत करते हुए बेहतरीन नसीहतें की। और जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद महीने चंद दिनों के बाद आपको लाने के लिए गए घर, हजरत फातिमा को देखा कि वो फातिमा आपके साथ आने के लिए आमादा नहीं, तो कहा कि अली अंदर मौजूद नहीं। तो फातिमा ने कहा, फातिमा रज़ी अल्लाह ने कहा, है बुझान आप सरताज, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप रसूल वक्त के नबी फातिमुन नबी हैं, लेकिन मेरे सरताज हजरत अली थे जिसके बारे में आपने खुद बताया है कि बीवी शौहर का हक अदा करे जब तक के जन्नत नहीं जाएंगे। अल्लाह जब तक शौहर राजी ना हो, वो जब तक
اللہ ताला राजी नहीं होगा। किसी मुआसिर में यहाँ आपके साथ नहीं आ सकती आपके घर, क्योंकि जब तक अली घर ना आ जाए। मेरे अजीज सामने इकराम, वक्त के वो नबी जो तमाम कायनात के लिए नबी बनाए गए हैं, हजरत फातिमा को लेने के लिए इंतजार करने लगे। वो कच्ची दीवार से हजरत फातिमा के टूटे फूटे जो हुजरा था उसमें बैठ गए, और जमीन का कच्चापन और गीलापन आपके बदन को, यानी आपके जो आपका शर्ट थी उसको, दामन को लग रहा है, और उसके अंदर आप बैठकर अपने दामाद का इंतजार कर रहे हैं। कुर्बान चाहिए इसी तालीमात पर एक वालिद, अब यानी खुसर की शक्ल में, एक ससुर की शक्ल में, और देखा गया तो चचाजाद तायाजाद भाई थे आप हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के, और आपके एहसानात अली रज़ी अल्लाह अन्हु पे बेहिसाब थे, और आप एहसान तले दबा कर उन्हें ले जा सकते थे, फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु को, अपनी बेटी को अपने घर, और नबी होने का दावा कर सकते थे, कुछ बता सकते थे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कायनात की उम्मतियों को यह बता दिया कि जब तक शौहर हुक्म ना दे किसी चीज का, तो औरत घर से ना निकले, चाहे उसका सगा बाप क्यों ना हो, वक्त का नबी क्यों ना हो, कि एक औरत अपने शौहर के बगैर इजाजत घर के बाहर नहीं निकल सकती। शौहर के बगैर इजाजत अपनी कमाई, शौहर की कमाई में से कोई हदिया, कोई तोहफा किसी को नहीं दे सकती, जब तक कि वो शौहर की इजाजत ना ले ले। लेकिन आप अफसोस का मुकाम है मेरे अजीज साहब, कई खवातीन मर्द के हजरात के पैसों को ऐसा लुटाती है गोया कि खुद उसकी कमाई हो, और बगैर, अब जब आते हैं सवाल करते हैं मेरे सामने कि बाहर से आ गए 3 साल के बाद कुछ पैसा हमारे हाथ में नहीं बचा, हम खर्चदार हो गए हैं, क्यों क्या वजह से हुआ, तो मैके में उन्होंने वो भरने लगी बगैर इजाजत के, अपने मैके वालों को दी, या किसी भी काम में सब की अपने मेकअप की चीजों पे, अपने जिंदगी के संवारने बनाने की चीजों में बेजा इसराफात, कपड़े लेने के लिए, खाने पीने की चीजों में लुटा लिया आने तक, और फिर वो बेचारा कर्जों में मुलविस होकर, ऐसे मेरे पास ये सच्चे वाकयात जो मैं आपको बता रही हूँ मेरे सामने आए हैं। बहुत अफसोस का मुकाम है कि जो बीवी अपने शौहर को जलील कर दे, पैसे से भी, मोहब्बत से भी, और जो शौहर अपनी बीवी को अपने लोगों के सामने से लीलोखार कर दे, तो उससे ज्यादा लानती कोई नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स लानती है जो मियाँ बीवी के दरमियान तफरीक डालता है और उन्हें जुदा करता है, चाहे वो बातों से हो, चरब जबानी से हो, ऐबजोई से हो, गीबत से हो, या तजाद से हो, किसी भी तरह से मुनाफिकत पने से हो, तो उसके लिए लानत है, अल्लाह की रहमत से वो दूर है, और अल्लाह ताला ऐसे इंसान के लिए जहन्नुम देखते हुए तैयार कर रखा है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज साहब इकराम, ऐसे दोनों को भी इज्जत का लिबास कहा गया है, एक दूसरे के लिए लिबास है, तो एक दूसरे के लिए वो महाफिज है, एक दूसरे की हिफाजत करने का जरिया बने, ना कि एक दूसरे को बदनाम करने का जरिया बने। तो ऐसे हालात आ चुके हैं माशरे में, तो अशद जरूरत है कि हम अपनी जिंदगियों का जायजा लें। बहुत सारी खवातीन 10 साल, 12 साल, 13 साल, 2 साल, 3 साल निकाह करें, लेकिन अपनी जिंदगी को संवारना नहीं चाहती। बहुत सारी सासें ऐसी है जो अपने अच्छे खानदान से बहू को ला लेती हैं, और उनको जिस तरह से सहूलती थी मैके में, बहुत सारी सहूलतें थी मैके में उनके लिए, खाने पीने की, उठने बैठने की, हर चीज की सहूलत थी, और लाई अच्छे घराने से, और उस लाने से कबल उस ससुराल के घर में नौकरानी थी, काम वाली थी, उसको खिदमत गुजार को निकाल देते हैं, ये सोच करके हम बहू को ला लिए, चलो वही काम करेगी, अब कोई नहीं करेगा। ये तो जबर है, हरदर्मी है, ये जिद है, अनानियत है, इसकी वजह से लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं मेरे अजीज सामने फिक्रा, और फिर एक घराना तल्लाक और खुले पे बब्बी बन जाता है, एक बेहतरीन जोड़ा तफरीक ज़दा बन जाता है। तो मेरी अजीज सामने फिक्रा, ऐसी हरदर्मी भी नहीं चाहिए ससुराल वालों को। अगर कोई शौहर गरीब है और 2 या 3 शादियां भी क्या हो, तो अपने मुताबिक उनको तीनों को प्रोटेक्ट करेगा, उन तीनों को उसी तरह से मैसर करेगा सहूलत की चीजें जो उसके माश के लिहाज से उसकी कमाई होगी। और इसी तरह अगर वो मालदार है तो मालदारी के लिहाज से तीनों को, या दोनों, तीनों, चारों जो भी बीवियां रहेंगी उनके दरमियान इतदाल के साथ करेगा। लेकिन बात मुफस्सिर मोहसिन कहते हैं, अगर वो मालदारी के तरीके से वो निकाह किया है, मालदार औरत को पहली लाया, दूसरी औसत लाया, तीसरी गरीब लाया, तो उसी के लिहाज से वो उसको सहूलतें मैसर करेगा, उसमें कोई भी खबात और कोई गुनाह नहीं है, अलबत्ता उसकी मोहब्बत में कमी पेशी ना हो तीनों के दरमियान। तो मेरी अजीज साहब, अगर एक शौहर इंतहा गरीब है, लेकिन तमाम एक औसत वाली बीवी भी है, मालदार भी बीवी हो और गरीब भी बीवी हो, तो तीनों को इसी तरह से वो देगा जो उसकी इस्तिताअत, उसकी ताकत होगी, कोई डिमांड नहीं होगी। ये सीरत हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिलती है मेरी अजीज साहब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई आपके हाथ में दीनार दिरहम नहीं था, कोई आपके पास कोई महाफिज नहीं था, सिवाय आपके चाचा के, अबू तालिब के, आपके जो आपके माउन मददगार थे। अब 25 साल उम्र थी, और आपके साथ हजरत खदीजा का जब प्रपोजल आया, तो आपने अपने चाचा से मशवरा करते हुए जब निकाह किया, तो मेरे अजीज साहब आपकी नीयत मालदार खातून से माल हासिल करके निमटना, और उनको अपनी अपनी जिंदगी को संवारना या अपना नाम रोशन करना नहीं था। मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 साल खातून से बड़ी खातून से निकाह करके हजरत खदीजा पर एहसान ही नहीं बल्कि बेइंतहा मददगार वो भी साबित हुई। और मेरी अजीज साहब की बेहतरीन सीरत ये मिलती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि आप 25 साल में निकाह किया, और आप 40 साल की थी, 15 साल बड़ी, और उसको तरजीह दी सिवाय अल्लाह की रजा के खातिर।
اور پھر جب آپ نکے میں آئی تو ان کا بھی دیے قربان جائیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پر آج کی امت مسلمہ کے لیے بہت ہی زیادہ پہلو ملتے ہیں، بہترین نکات ملتے ہیں زندگی سنوارنے کے لیے کہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ نے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نچھاور کی بلکہ اپنا تمام تر مال اسلامی تعلیمات پہ لٹا دیا، اسلام کو آگے بڑھانے میں، فروغ دینے میں ہر طرح کی مدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی۔ ایسے معلومات، ایسے معاملات ہو جائے آپس میں میاں بیوی کے، ایسے تعاون، ایسی مدد آپس میں ہو جائے، ایک دوسرے کے لیے مددگار بن جائے، تو میری یقین جانیے میری عزیز سامعین اکرام، محبت اس کے دل میں مرے تک ختم نہیں ہونے والی ہے وہ شوہر کے۔ آج میری عزیز سامعین اکرام 5 سال چھوٹی بیوی ہوتی ہے، 10 سال چھوٹی بیوی ہوتی ہے کسی مرد کی، اور 2 سال 1 سال ہوتی ہے یا ہم عمر ہوتی ہے، تو بھی اس کے دل میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جیسی محبت جاگزہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اخلاق، وہ سیرت آج کے خاتون اپنا نہیں رہی ہے۔ کوئی اپنا بھی رہی ہے 100 میں سے 10%، تو اس کو اگنور کیا جا رہا ہے، اس کی عزت نہیں کی جا رہی ہے، لیکن اس کا بدل انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، ایسی نیک خاتون کا بدل انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہاں پر اللہ کے دربار میں ضرور مل کر رہے گا، کہیں ضائع نہیں ہوں گا۔ وہ اپنے عمل میں استقامت سے ڈٹے رہیں، کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس کے لیے باعث سے گناہ، باعث سے ناراضگی اللہ کی مولنے والی ہو۔ میری عزیز سامعین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد کئی سال تک بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سامنے، تمام زوجین کے سامنے ذکر کرتے تھے، تذکرہ کرتے تھے، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجین کے اوپر کبھی شکنیں آ جاتی چہرے پہ کہ یہ کیا ہے کہ اتنی عمر والی خاتون کا ہمارے سامنے ذکر کرتے ہیں، جبکہ ہم بھی تو، عائشہ فرماتی ہیں، دل میں سوچتی تھی تو میں بھی تو کنواری ہوں، پھر میرا ذکر کیوں نہیں؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی وہ الفاظ سنے تو کہا عائشہ سن لو، وہ خاتون ایسی ہے جس نے میرے وقت، اس وقت نکاح کیا جس وقت میں میرے پاس کوئی مال و متاع نہیں تھا، اس وقت میں ہر طریقے سے میں مسکین تھا، غریب تھا، اور اس وقت اسلام میں اسلام کو بڑھانے کے لیے، فروغ دینے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے اسلام کی تعلیمات کو میرا ساتھ دی، نہ صرف ساتھ دی بلکہ جس وقت مکہ کے مشرکین میرا انکار کر رہے تھے اس وقت میرے پر ایمان لائی، اور جس وقت میرے پاس کوئی مددگار معاون نہیں تھا وہی مال سے بھی مدد کی، محبت سے بھی مدد کی، اور غار ہرا میں جب جا کر ایک مہینہ میں بیٹھ جاتا تھا نبوت ملنے سے قبل، تو وہ میرے پاس توشہ لا کر دیتی تھی، اسی کے توفیل میں اللہ آپ سیرت پہ پڑھیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تعریف کرتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی، چونکہ انہوں نے نہ صرف مال متاع کو لٹایا بلکہ اپنے ہاتھوں سے پکوان کر کے اور اپنے ہاتھوں سے جھاڑو مارتی تھی، آپ کے برتن دھوتی تھی، آپ کے گھر میں جھاڑو لگاتی تھی، آپ کے کپڑے دھوتی تھی، اور اتنی مالدار خاتون ہونے کے باوجود بھی لکڑی کے چولہے پہ ہنڈیا پکا کر اسے اپنے توشہ باندھ کر، اپنے دوپٹ سے باندھ کر غار ہرا تک کئی کلومیٹر دور لے جا کر اسے پہنچاتی تھی، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرتاج کو، اپنے شوہر کو اس ٹفن کو، توشے کو پہنچاتی تھی۔ اور آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ہرا سے جب ڈر کر آئے نبوت کے پہلے وقت، تو سب سے زیادہ پہلے حوصلہ افزائی دینے والی یہی خاتون تھی جس کو آسمانی دنیا سے اللہ کا سلام پہنچا، یہی وہ خاتون تھی جس کو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل الامین نے اللہ کے سلام کے ساتھ اپنا بھی سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچایا۔ میری عزیز سامعین اکرام، اسلامی تعلیمات اتنی بہترین ہیں کہ اگر اسے اپنا لے مومنہ عورت تو دنیا میں بھی سرخری، اخروی زندگی میں سرخری حاصل ہو جائیں گی۔ آپ جانیں گی کہ چند سال پہلے یہاں فتح دروازے میں ایک خاتون کی خبر کھد گئی غلطی سے، تو 20 سال کے بعد اس کی خبر کھد گئی غلطی سے، تو دیکھا کہ اس کی کفن جیسا کا تیسا ہے، تو لوگ پوچھے کہ کس خاتون کی ہے، یہ نیوز میں بھی آیا اور جانے پہچانے لوگوں میں سے ہے، یہ رشتہ داروں میں سے میرا واقعہ۔ میرے عزیز سامعین کرام، جب معلوم کیا گیا کہ کس خاتون کی تھی جس کی خبر سے خوشبو آ رہی ہے، جس کا کفن ذرہ برابر بھی میلا نہیں ہے، تو اس وقت معلوم کیا گیا تو پتا چلا کہ مواحدہ خاتون کی، جس کا گھرانہ مواحدانہ تھا، توحید پرست خواتین کی تھی، جس کا شوہر راضی تھا، یہ توحید پرست خاتون کی تھی جو نماز کی پابند تھی اور روزوں کی پابند تھی، باحیا باعصمت تھی، اور 5 وقت نمازی نہیں تھی بلکہ اپنے شوہر کی ساتھ گزار بھی تھی، باپردہ باحیا تھی۔ میرے عزیز سامعین کرام، ایک مومنہ خاتون بھی، اگر یہ تو صحابیات کی ازواج مطہرات کے واقعات سے پہلے گزر چکے، لیکن میرے عزیز سامعین کرام، ایک مومنہ خاتون بھی آج بھی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کر جنت کو پا سکتی ہے اور تمام مشکلات کو یوں پہ آسان کر لے سکتی ہے۔ میری عزیز سامعین کرام، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ لڑائی جھگڑا، آپسی اختلافات کو تیسرے کے درمیان ڈالنا اور اس کے اختلافات کو اور بڑھا لینا، جس کے سبب سے کثرت سے طلاق و خلا ہو رہی ہے۔ ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ ایک شوہر میرے سامنے شکایت کیا کہ میری بیوی آج تک بھی فجر کی نماز نہیں پڑھی، شادی ہو کے 2 سال ہوا اور کبھی نہ انہیں مجھے صبح کا ناشتہ بنا کے دی،
क्या करूं, और बच्चे भी हो गए अभी भी इताअत नहीं करती, तो अफसोस का मुकाम है। और एक ऐसी खातून जो कहती है कि मैं पापर्दा पाहया हूँ, बाइस्मत हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, रोजे रखती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन मेरा शौहर नमाज नहीं पढ़ता। कई तरीके से मैं समझा के सुलझा के उसे देख ली। तो मेरे अजीज सामत इकराम, तमाम मसाइल का हल क्या है? तो वो औलाद की शादी करने से पहले वालिदैन उनकी सही तरबियत करें, और उनके हाथों में जो मोबाइल आए हैं वो मोबाइल को हाथों से ले लें, और वो बीवी जिसको घर में लाया गया है उसको बेहतरीन मोहब्बत दे एक मर्द, और उसको ऐसा हौसला दे कि उसके अंदर की कमी पेशी दूर हो जाए और उसकी इताअत करने पे वो राजी हो जाए। और बहुत सारे मर्द ऐसा जबर करते हैं, जोर डालते हैं उसके घर वालों की तरफ से, अपनी बीवी को जलील वखार कर देते हैं, बहन के खातिर, बीवी के खातिर, भावच के माँ के खातिर, और कभी भावच के खातिर, कभी किसी किसी के चक्कर में रहकर अपनी बीवी को जलील ही नहीं करते, बल्कि कई तोहमतें लगाकर उसे छोड़ देते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह हाफिज ना। अल्लाह ताला माशरे से इस गंदगी को पाक करे। मेरी अजीज सामत इकराम, एक दूसरे को जैसा लिबास कहा गया इस तरह से लिबास बने, और एक मर्द का काम है कि जब बीवी को घर ले आए तो उसके लिए जरूरी है कि बेहतरीन बीवी को शरई अहकामात जो है उसे वाकिफ कराए। जैसा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत सारा अलैहिस्सलाम को सबसे पहली रात में अल्लाह की वहदानियत से वाकिफ कराया था, इसी तरह उसे दीन की तरफ लाए, अल्लाह की मारिफत से वाकिफ कराएं, रसूल की मारिफत से वाकिफ कराएं, और उसके अंदर की कमी पेशी को दूर से मोहब्बत और प्यार से दूर करने की कोशिश करें, ना कि जहालत से, ना ही संस्थानों से, नुक्ताचीनी से दूर होने वाला नहीं है। जब नुक्ताचीनी बढ़ जाती है तो शैतान चाहता ही है कि दोनों को तफरीक डाल दें और जुदा कर दे। मेरी अजीज सामने आज अशद जरूरत है कि एक दूसरे के लिए हम जहन्नुम की आग से बचाने का जरिया अलाकार बने। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, हे ईमान वालों, अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ, जिसका ईंधन आदमी व पत्थर है। मेरे अजीज सामने जो जहन्नुम की आग है, उस जहन्नुम की आग से बचने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि दुनिया के इख्तलाफात को दूर कर दे, छोटे मोटे जो भी हमारे मसले हैं, हमारे ज़ौजैन के ताल्लुक से, हमारे मियाँ बीवी के ताल्लुक से, उन मसाइल को अपने आप में हल करने की कोशिश करें, उलमाए दीन के दरमियान हल करने की कोशिश करवाने लगाए, लेकिन किसी ऐसे इंसान के सामने ना जिक्र करे जो हमारी जिंदगियों का मजाक उड़ाए या हमारी जिंदगियों को बिछाने का जरिया अलकार बने। मेरी अजीज सामने इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द को ये भी कहा कि अपनी बीवी को फहश और फासिका और फाजिरा माहौल से दूर रखे। कैसा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक खनस आता था, खनस यानी झिझड़ा आता था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बेहुदा अल्फाज को एक मरतबा सुन लिए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नामुनासिब बातें थी, जिसे सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपने ज़ौजैन से कि तुम दोबारा इस मर्द को यानी इस खनस को अपने घर में दाखिल होने ना दो, जिसकी वजह से माहौल खराब हो जाए, जिसकी वजह से बेपर्दगी हो जाए। यानी एक खनस भी है तो उससे भी पर्दा करना है, मर्द तो मर्द है, अगर वो खनस भी है तो एक औरत को चाहिए कि उससे पर्दा करे, और उसके कजन्स और उसके नामहरम रिश्ते जितने भी है उससे पर्दा कराए। मेरे सामने ये भी शिकायत आई है खातून की कि मेरा शौहर अपने दोस्तों के सामने निकालना पसंद करता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी बीवियां उनके सामने निकलते हैं, तो क्यों मैं ना निकलूं? अगर मैं नहीं निकलूं, निकलने का मैं ना निकलूं तो वो धमकी देते हैं कि मुझे छोड़ देंगे, तलाक दे देंगे। मेरी अजीज सामने ये भी जबर है, ये हर दर में ये जिद है, इस्लामी तालीमात से नावाकिफ होने की वजह से है। वक्त नबी कितने पाक साफ, वक्त नबी के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजैन की जो साथियां होती थी, सहेलियां होती थी, साहबियां, तो कभी भी आपके सामने पर्दे की आयत उतरने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कभी नहीं निकली। कोई भी ऐसी खातून जब पर्दे का हुक्म निकला, उतरी आयत, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई भी नहीं निकला। तो मेरे अजीज सामने इकराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई पाकीज़ा, कोई इफ़्फ़त वाला, कोई असमत वाला और शर्म वाला, हया वाला और मासूम कोई नहीं हो सकता। तो हम क्या बता सकते हैं कि बूढ़े हैं निकल जाओ, जवान है निकल जाओ, अधड़ है निकल जाओ, हमारे से बचपन में हमारे सामने पले बड़े, जवान हुए, क्या हुआ निकले तो? बीवी की भी हरदर्मी होती है पास वक्त शौहर के साथ, मेरे कजनों के सामने निकली तो भी क्या हो गया? और शौहर कहता है कि मेरे कजनों और मेरे दोस्त अहबाबों के सामने तुम निकल गई तो क्या होगा? नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कहा एक मर्द से कि अगर तुम्हारी बीवी की बहन, जो तुम्हारी निस्बती बहन होती है यानी साली होती है, अगर वो फासिका फाजिरा अमल करती है, कोई किरदार, कोई अमल ऐसा है जिसकी वजह से तुम्हारी बीवी बिगड़ सकती है, तो उसको भी अपने घर में आने ना दो। अल्लाह अकबर, इस्लामी तालीमात कितनी बारीक बीनी से बयान कर दिए गए हैं, चाहे उधर के खातून हो या इधर के खातून हो, कोई ऐसी चरब जबान वाली हो, बेपर्दा हो, बेहया हो, कोई ऐसी फहाशी का काम अंजाम देती हो जिसको एक औरत सीख लेना उसके लिए आसानी बन जाती है, तो उस वक्त उसे अपनी बीवी को बचाना लाजमी हो जाता है। अगर कोई शौहर इस तरह से मना करता है तो बीवी को हमदर्दी और जिद नहीं करनी चाहिए, और जबर करके और अपने बिस्तर पे ऐसे शख्स को, ऐसे मर्द को या ऐसी औरत को नहीं दिखाना चाहिए जिससे शौहर नाराज होता हो। अल्लाह अकबर, इससे भी लानत है जो औरत अपने बिस्तर को किसी मर्द के जरिए, किसी औरत के जरिए रोनती है, उस पर अल्लाह की फटकार है, लानत है, अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम तैयार कर रखा है। मेरी अजीज सामने इकराम,
वक्त यही तकाजा करता है कि आज हम इन दुआओं को, इन आयतों को समझ जाएं जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला अताता बिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह ताला की मासियत में यानी नाफरमानी में किसी मखलूक की फरमाबरदारी जायज नहीं है। कोई अगर मर्द हुक्म दे शिरक अक़वाल करने का या बिदात करने का, नाजायज गुलू वाली बातों को करने का, या फिर ऐसे गुलू यानी नबी का मर्तबा अल्लाह तक बढ़ाने के ऐसे काम करता है, या अल्लाह के साथ किसी के जरिए से शिरक करता है, करवाने का हुक्म देता है, करता है, करवाता है, तो उससे रुक जाना चाहिए। एक मर्द कोई बीवी अपने शौहर की बात नहीं मानेंगी जहां पर अल्लाह की नाफरमानी होने का खदशा हो, चाहे वो उसके माँ बाप क्यों ना हो, चाहे उसका शौहर क्यों ना हो। इसी तरह शौहर अपनी बीवी की इस वक्त बात नहीं मानेगा जहां पर अल्लाह की नाफरमानी होने का खदशा हो, तो हरगिज उस चीज को करना नहीं चाहिए। और इसी तरह से एक मर्द अपनी बीवी को चुस्त लिबास पहनने का हुक्म देता है तो वो भी गलत है। अगर वो तन्हाई में अपने पास जिस तरह से चाहे पहनने का हुक्म दे और जिस तरह से संवरने का हुक्म दे तो वो कर सकती है, लेकिन नाजायज तरीके से वो सबके सामने चुस्त लिबास, चुस्त बुरखा, चुस्त लिबास पहनाने का हुक्म देता है तो वो भी उसे नहीं करना चाहिए। ऐसे मर्द हजरात को भी मैं देखी हूँ, सुनी हूँ, जो कहता है कि ब्यूटी पार्लर जाओ, अपने आप को संवार के आओ। क्यों वजह से ये हुआ मेरी अजीज सामने इकराम, एक बापर्दा बाहया औरत है, उसको बाल कटवाने का हुक्म देता है, उसे ब्यूटी पार्लर जाने का हुक्म देता है और कहता है कि मुझे उसी तरह से चाहिए जिस तरह से मैं फलां की कजन को, फलां की बहन को, फलां की बीवी को देखता हूँ। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर ऐसे शॉर्ट वीडियोस देखने की वजह से मर्द हजरात बिगड़ रहे हैं, जो अपनी दीनदार बीवी से पसंद नहीं आ रही है। इसी तरह एक दीनदार मर्द के लिए एक बीवी को अपना दीनदार शौहर पसंद नहीं आ रहा है। उसकी दाढ़ी, उसका हिफ्ज करना, उसका कारी कुरान होना और उसका हाफिज कुरान हो, उसका आलिम और फाजिल होना, उसका मुफ्ती होना उसे पसंद नहीं आ रहा। तो ये ऐसे केसेस हैं मेरे सामने। अफसोस हुआ, जो खतीब है, आलिम है, लेकिन उनके बीवियां उनके फरमाबरदार नहीं है। कई ऐसे आलिम दीन और हाफिज कुरान बच्चियां हैं जिनके नसीब अल्लाह ताला ने अलग, अल्लाह ताला ने उनके मुकद्दर में आजमाइश रखी है, उसकी जुदाई हो गई या फिर जुदा नहीं हुए, सहते जा रहे हैं। लेकिन मेरी अजीज सामने आपसे एक इल्तिमास करूंगी तमाम बहनों से, अगर हमारी बेटी है, कल के दिन हमको निकाह करना है, तो सबसे पहले हम बेहतरीन वसीयत करें जैसे अस्मा बिन्त खारजा ने किया है। लेकिन याद रखिए उसके साथ ये भी वसीयत किए, अगर बहुत दुख है, वहां पर कोई ऐसी तकलीफ है जो अल्लाह रसूल के खिलाफ जा रही है, तो हम अपनी बेटी को हौसला दे, कहें कि मेरी बच्ची अगर वैसा हालात आ गए जहाँ पर अल्लाह की नाफरमानी का खदशा हो, तो तुम हमारे घर की तरफ रुख कर सकती हो, आ सकती हो। ये जबर ना करे, ये जबरदस्ती ना करे। मेरी बेटी डोली तो उठ रही है, डोली भी यहाँ से उठे तो तुम्हारी वहां पर डोली भी वहीं पर उठेगी, यानी यहाँ से तुम्हारी जब यहाँ से जा रही है ससुराल, तो जाने के बाद तुम्हारा जनाजा भी वो घर से निकलेगा, हमारे घर नहीं आना। तो मेरे अजीज सामने कराम का ये ऐसी मुश्किल वाली हंसी हुई खवातीन को मैंने देखी हूँ, जो देखकर अफसोस होता है कि जबर सितम सहकर और ऐसे शिकवे अखबाल सुनकर करने के पर मजबूर हो गई, विदा कर रही है। नहीं मालूम है, दीन से ज्यादा वाकिफ नहीं है, ससुराल को करवा रहे हैं और माँ बाप की तरफ पलट के नहीं चाहती, तो अल्लाह अकबर, अपने ईमान को ना बेचिए, हौसला अफजाई पैदा कीजिए, शिर्क से, बिदात से, खुराफात से, ऐसे अमल से बचिए जो अल्लाह की नाफरमानी का सबब बनने वाले हैं, जिसकी वजह से हम जहन्नम में जाने का जरिया बन सकते हैं। ऐसा काम मत कीजिए। हौसला दिलाइए, अपने माँ बाप को समझाइए और अपने हालात को बताइए। अल्लाह ताला ने खुला तलाक रखा है तो उसके बारे में भी बताया कि जायज तरीके से खुला ली जा सकती है, तलाक लिया जा सकता है, नाजायज तरीके से नहीं लिया जा सकता। जहां पर जायज है, कदम उठाया जा सकता है तो उठाना जरूरी भी होता है। नहीं उठाने की वजह से जिंदगियां बर्बाद होती है, खानदान बर्बाद हो जाता है, नस्ल बर्बाद होती है और दोनों जहां में जहन्नुम का दहकती हुई आग तैयार हो जाती है। मेरे अजीज सामने इकराम, मैं आपको लास्ट में, बहुत सारा मजमून है लेकिन मैं आपके सामने दो आयतें बताऊंगी। एक तो ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। इसकी बहुत सी निशानियों में से ये है कि तुम्हारे जिन से बीवियों को पैदा किया ताकि तुम उनसे आराम पाओ, इसलिए तुम्हारे दरमियान मोहब्बत हमदर्दी कायम कर दी। यकीनन गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत बड़ी निशानी है। मेरी अजीज सामने इकराम, इस आयत करीमा के अंदर सूरह रूम आयत नंबर 21 में रब्बुल आलमीन ने बड़ी निशानी बताया मियाँ बीवी के मिलन को, बंधन को, आपसी ताल्लुकात को, एक दूसरे को अजनबी होने के बाद एक दूसरे से मिल जाना, सेकंडों में तमाम मायके की चीजों को भूल जाना, एक शौहर तमाम चीजों को भूल कर सही तरीके से इस्लामी तालीमात में जुड़कर उससे जिंदगी गुजारता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से खुश होता है। तो मेरे अजीज सामने इकराम, उन लोगों से इल्तिमास है जो माएँ अपने बच्चों को पहले तो रिश्ते सही तरीके से नहीं करती, जहाँ पर कर दी है वहां पर ऐसा अमल हो रहा है तो उसे अपने पास बुलाने से आर महसूस करती है। हम और आप कौन होते हैं मेरे अजीज सामने इकराम, अपने बच्चों की जिंदगी को कल का क्या होने वाला है मुकल्लिफ नहीं है हम, हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है, हमारे औलाद की जिंदगी में क्या होने वाला है, बेटियों और बहनों की जिंदगी में कल क्या मुस्तकबिल आने वाला है, क्या बनने वाला है, हमको पता नहीं, हम जिंदा रहेंगे या ना रहेंगे। ये तो
रब्बुल इज़्ज़त का मामला है, जो करने वाला है खालिक व मालिक है, उसके हाथ में ही तमाम बादशाहत। मेरे अज़ीज़ सामईन, हम कल के मुस्तकबिल को देखकर अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद ना करें और बेहतर तरह से ज़िंदगी गुज़ारने की कोशिश करने लगे। और सबसे पहली चीज़ ये है मेरे अज़ीज़ सामईन, तमाम मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा की ख़वातीन से, उस मर्द हज़रात से, कि वो इस्लामी तालीमात से आरास्ता पैरास्ता करे अपने औलाद को। असली तालीमात के साथ मर्द को हो या बच्चे को हो या बच्ची को, पहले इस्लामी तालीमात से भी आरास्ता करे। असली तालीम जितनी चाहे दे, इसमें कोई ख़बात नहीं। वो तो तमाम इस्लामी तालीमात कुरान और हदीस के ज़रिए, असली तालीमात तमाम कुरान और हदीस के ज़रिए ही निकले हैं। लेकिन उसी के साथ-साथ पूरे तरीके से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबियात की तालीमात से वाक़िफ़त करे। इंशाअल्लाह तबारक तआला तमाम डिग्रियाँ उनके काम में आएँगी, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, डॉक्टरी की हो, लॉयर की हो, पायलट की हो, कोई सी भी डिग्री होंगी, वो तमाम डिग्रियाँ उसके लिए बाअस माउन मददगार साबित होंगी, चाहे वो बीवी के हक़ में हो शौहर की तरफ से, क्या शौहर के लिए बीवी की तरफ से हो, वो तमाम डिग्रियाँ उसके माउन मददगार साबित होंगी। वरना अंधा-धुंधा ज़िंदगी गुज़ारेंगे, एक-दूसरे पर हक़ जताने में, एक-दूसरे की अना में वो ज़िंदगियों को अपने बर्बाद कर बैठेंगे। हम जब बच्ची को रुख़्सत करते हैं तो डिग्रियाँ ही नहीं देते, बल्कि जहेज़ देते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके सुपुर्द करते हैं और उनके साथ एक सहूलतें की चीज़ें मैसर करते हैं, ना सिर्फ़ डिग्रियाँ देते हैं और इतनी बड़ी, इतनी जवान बच्ची को हम पाले, पोसे, डिग्रियाँ दिए, पाले और अच्छी तरीके से सँवारें, लेकिन उसको दीन की तालीम नहीं दिए कि शौहर के साथ कैसी गुफ्तगू करे। मेरे अज़ीज़ सामईन, जो आज मामले बन रहे हैं, बहुत ही खुले तलाक़ से ये है कि बुलंद आवाज़ से एक बच्ची बात करती है अपने शौहर के सामने और बहुत ही तंज़ और ताने के साथ तहक़ीर भरा तरीके से उसको देखती है और शौहर के साथ नरम लहजे से और धीमे लहजे में गुफ्तगू करनी चाहिए, सख्त लहजे में गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, नरम लहजे के साथ और हर वक़्त अदब का लिहाज़ रखें। जब भी वो हुक्म दे, कितनी भी मसरूफ़ियत हो, उस मसरूफ़ियत को तर्क करके शौहर के पास मौजूद होना चाहिए। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस औरत पर लानत है जो औरत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मर्द अपनी बीवी को अपने बिस्तर पे बुलाए, इज़ा दअ अर्रजुलु इम्रअतहु इला फ़िराशिही फ़अबत तजीह फ़बाअत ग़ज़बान अलैहा लअनतहल मलाइकतु हत्ता तुज़बिहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी में है, सही मुस्लिम में, जब मर्द अपनी बीवी को अपने बिस्तर की तरफ बुलाए, वो आने से इनकार कर दे और मर्द नाराज़गी के साथ रात गुज़ारे, तो उस वक़्त रात तमाम फ़रिश्ते उस औरत पर सुबह तक लानत भेजते हैं, अल्लाह की रहमत से दूरी की दुआ करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना। मेरी अज़ीज़ सामईन, और एक रिवायत में है कि जब तक वो औरत अपने मर्द को, अपने शौहर को, अपने मियाँ को राज़ी ना कर ले, उस वक़्त तक अल्लाह की रहमत से वो दूर होती रहती है, फ़रिश्तों की लानत फटकार उस पे होती रहती है। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना। लेकिन अफ़सोस का सद अफ़सोस का मुक़ाम है मेरी अज़ीज़ सामईन, एक औरत अपनी तमाम ख़्वाहिशात को मनवाने के लिए नाराज़ होती है और फिर अपने बच्चे को बीच में डाल देती है या तकिए को लगा देती है और शौहर को तड़पता हुआ छोड़कर अपनी ज़िंदगी को मस्त इस तरफ करवट लेके सोती है और कहती है, दिल में सोचती है कि ये तमाम हथकंडों के ज़रिए मैं अपने शौहर को काबू में कर लूँगी और शौहर मेरी बात को मान लेगा। जो भी शराइत है, चाहे बाहर जाके जॉब करूँगी या मैं बाहर अपनी ज़िंदगी को बेहतर सँवारूँगी या फलाँ-फलाँ कोई भी काम करने का मनवाना है, चाहे जायज़ हो या नाजायज़ हो, मनवाने की ख़्वाहिश पेश करने के लिए वो इस तरह से हथकंडे अंजाम देती है। मेरी अज़ीज़ सामईन, अगर इसी तरह से जायज़ नाजायज़ तरीके से हथकंडे को इस्तेमाल करेंगी और रात तमाम मलाइका की उसके ऊपर फरिश्तों की लानत होते रहेंगी, तो यकीन जानिए इसी हालत में अगर उसका इंतकाल हो गया तो अल्लाह ताला सिवाय जहन्नम के ऐसे कुछ नहीं देगा। मेरी अज़ीज़ सामईन, वो सोचने में पाबंदी करना चाहिए उसकी ज़िंदगी किस तरह से वो ज़िंदगी गुज़ार रही है आज। शौहर बुला रहा और चूल्हे का पकवान का हीला करके चली जाती है। शौहर मनाने के लिए, मोहब्बत के, प्यार के बोल बोलने के लिए उसकी तरफ अतराफ में उमड़ आता है, अंडलाता है, जाता है, उसके करीब-करीब आने की कोशिश करता है, तो वो नज़रें फेर लेती है, मोड़ लेती है, झुर्कियाँ देती है, चेहरे के तासुरात से उसे नाराज़गी बताती है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो बीवी बहुत ही ज़्यादा खुशबख्त है, जो अपने शौहर को राज़ी रखती है और उसका शौहर उससे राज़ी होता है। जिस वक़्त उसका इंतकाल होगा तो सिवाय जन्नत में से जन्नत में उसका दाखिला कर दिया जाएगा। तो मेरी अज़ीज़ सामईन, आज मैं तमाम ख़ातून से इस बात की इल्तिमास करती हूँ कि हर कदम पर शौहर को अपना ख़व्वाम मानिए, बराबरी का अ, बराबरी का अ, बराबरी का बराबरी के बारे में ना सोचें कि मैं भी बराबर हूँ शौहर के। बराबरी इस्लाम में दी गई है, किसी तरीके से कमी पेशी नहीं की। इस्लाम ने बहुत इज़्ज़त दी ख़ातून को, लेकिन इसी के साथ-साथ उसके हुदूद को, उसके मर्तबे को बहुत बेहतरीन तरीके से बता दिया गया। अगर हम शौहर के साथ बदकलामी करेंगे, ताक़िर करेंगे, बेइज़्ज़ती करेंगे, तो यकीन जानिए वही शौहर हमारे लिए ना सिर्फ़ नाराज़गी का सबब बनने का, जहन्नुम का ज़रिया बनने का, बल्कि उसके शौहर के होने वाले बच्चे भी हमें इज़्ज़त नहीं देंगे। जो माँ-बाप अपने बच्चों के लिए आइडियल वाले ना बनते हैं, एक बेहतरीन साबित नहीं होते हैं, बेहतरीन तरीके के माशरे की सुधारने वाली
शख्सियात नहीं बनते तो वो बच्चे भी उनके बिगड़ जाते हैं, एक माहौल बिगड़ जाता है और फिर ये माँ बाप बच्चों के लिए बेहतरीन माँ बाप बदतरीन माँ बाप साबित होते हैं और शोहर की नज़र में वो औरत गिर जाती है। मेरे अजीज सामने इकराम, मैं आपके लिए बेहतरीन दुआएं बताऊंगी। मौजूद तो बहुत ही बड़ा है, एक जो दुआएं आप नोट कर लीजिए, आपको याद भी होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला आपकी बरकतों में आपकी उम्रों में खैर व बरकत दे, आपके चेहरों पे शादमानी रखे, तरोताज़ा रखे, आपकी ज़िंदगियों को, आपके मसाइल को हल करे। जो आपने औकात को निकाल कर यहाँ पर बैठी है और मैं बड़े ही सादे अंदाज में आपको समझाने की कोशिश की। बहुत सारी अहादीस वाक़यात आयतें हैं जिसके ज़रिए बहुत वक्त लगने का खदशा था, इसीलिए मैं सादे अंदाज में अपने बयान कुरान हदीस की रोशनी में बताने की कोशिश की। जो भी कमी पेश रहेगी उससे मैं अल्लाह से माफ़ी की दरख्वास्त करती हूँ। अल्लाह मुझे माफ़ करे और आपको सही इल्म हासिल करने का तौफीक अता फरमाए। जो सही है उसे कबूल कर लें, जो गलत है उसे छोड़ दें। मेरे अजीज सामने इकराम, खाविन बीवी में आपसी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की आयत है। जो खाविन पढ़ ले तो बीवी बेहतर हो जाएंगी, बच्चे बेहतर हो जाएंगे। अगर बीवी पढ़ ले तो शौहर और बच्चे उसके लिए आंखों की ठंडक का बात बन जाएंगे। कि वो आयत ये है मेरी अजीज सामने इकराम, सूरतुल फुरकान आयत नंबर 74। सूरतुल फुरकान आयत नंबर 74। सूरतुल फुरकान आयत नंबर 74। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐ रब्बुल आलमीन, हमारे शौहर को यानी हमारे बीवी को, शौहर करा तो बीवी के लिए, बीवी करी तो शौहर के लिए, ज़ौज का मतलब दोनों के लिए है, ज़ौज का लफ्ज़। अल्लाह हमारे शौहर को, हमारे बच्चों को हमारी आँखों का ठंडक का ज़रिया बना दे और इमामों, मुत्तकियों, परहेज़गारों का इमाम बना दे। सुभान अल्लाह। ये दुआ करते रहें अपने बच्चों के हक़ में, चाहे नेकी क्यों ना हो बीवी, शौहर करे, नेकी क्यों ना हो शौहर, बीवी करे, नेकी क्यों ना हो बच्चे, उसके बावजूद भी करते रहें, उसमें दुगना इज़ाफ़ा होगा इस्लाम में, तालीमात में और आगे बढ़ने का। और एक दुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, जो शौहर की तरफ से एक औरत को खदशा हो कि वक़्त से पहले वो बूढ़ी हो जाएगी, इतना ज़्यादा टॉर्चर करता है, इतना ज़्यादा उसको तकलीफ देता है, इज़्ज़ा रसानी पहुँचाता है, जिसके सबब से वो किसी को बता नहीं सकती। तो उस वक़्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखलाई है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जारि सू व मिन ज़ौजन तुशय्यिबुनी व मिन ज़ौजन तुशय्यिबुनी व क़ब्लल मुशय्यिबी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जारि सू, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आती हूँ बुरे पड़ोसी से। व मिन ज़ौजन तुशय्यिबुनी क़ब्लल मुशय्यिबी, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आती हूँ ऐसे शौहर से जो मुझे बुढ़ापे से पहले बुढ़ा कर दे। मेरी अजीज सामने से वक्त बहुत कुछ ले चुकी हूँ। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन मुझे और आपको आते वाला आते रसूल पर गामजन करने वाला बनाए, उसी पर चलने वाला बनाए और जितनी भी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ें हैं उसको अपनाने और सहाबियत के सीरत को अपनाने का जरिया बनाए और आपको मुझको अमल की तौफीक अता फरमाए, इखलास के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रिया, नमूद, बदकारी, बेशर्मी से हमें बचा लें। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सना सुब्हानक रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा फिद दुनिया व फिल आखिरह। माशाअल्लाह सिस्टर मैमुना अतिया साहिबा, आपने बहुत बेहतरीन अंदाज में अपनी बात रखी। बहुत कुछ आज हमें सीखने को मिला। आज के टॉपिक बहुत ही अच्छा रहा। अल्लाह ताला आपको इसके जज़ाए खैर दे, सलामत रखे, आमीन। डियर सिस्टर्स, आइए अब हम आखिर में तिलावत सुनते हैं उस्ताज़ा मैमुना अतिया साहिबा के फर्जंद उक़बा अली की। तिलावत करना।